राधा स्वामी जी घर में बस 10 मिनट ये चला कर देखो। ओम बाबा जी की बरकत देखो। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलना। राधा स्वामी जी शांत। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਅਜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਚੁਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਪੀਸਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਮੱਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 1 ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮੂਨ ਬੇਗ ਡਰਾਈ ਮੂਨ ਬੇਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਜੁਲਾਈ 1905 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। 2 ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 1937 ਤੋਂ 1975। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਜਧਾਮ ਸਿਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1937 ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਆਲਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 3 ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਬਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲਬਾਗ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। 4 ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ। 5 ਦੇਹ ਤਿਆਗ। ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 14 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਜਧਾਮ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ MB ਲਾਲ ਜੀ ਡਰਾਈਵ MB ਲਾਲ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1 ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੇਵਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2 ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਣਕ ਚੁਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 3 ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 4 ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ स्वामी जी। राधा स्वामी मत के प्रथम गुरु स्वामी जी महाराज। 1 जन्म और प्रारंभिक जीवन। राधा स्वामी मत के संस्थापक और प्रथम गुरु सेठ शिव दयाल सिंह जी महाराज थे, जिन्हें श्रद्धालु स्वामी जी महाराज के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 25 अगस्त 1818 को आगरा के पन्नी गली में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला दिलवाली सिंह जी और माता का नाम महाबरकत जी था। 2 आध्यात्मिक खोज। स्वामी जी महाराज बचपन से ही बहुत शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक एक अंधेरे कमरे में बैठकर गहन ध्यान सूरत शब्द योग का अभ्यास किया, जिसे आज भी आगरा के स्वामी बाग में देखा जा सकता है। 3 सत्संग की शुरुआत 1861। लंबे समय तक गुप्त अभ्यास करने के बाद उन्होंने बसंत पंचमी 15 फरवरी 1861 के दिन सार्वजनिक रूप से सत्संग जारी किया। यहीं से राधा स्वामी मत की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर ही शब्द या नाम की कमाई करके उसे पाया जा सकता है। 4 मुख्य शिक्षाएं। सूरत शब्द योग। आत्मा। सूरत को शब्द आकाशवाणी धुनात्मक नाम के साथ जोड़ना। शाकाहार और सदाचार। आध्यात्मिक तरक्की के लिए शुद्ध खान पान और ऊंचा चरित्र अनिवार्य है। कुल मालिक की भक्ति। उन्होंने बताया कि राधा स्वामी नाम ही उस परम सत्ता का असली नाम है। 5 ग्रंथ और रचनाएं। स्वामी जी महाराज ने अपनी शिक्षाओं को सार वचन, छंद और गद्य नामक पुस्तक में संकलित किया। इसमें उन्होंने रूहानियत के कठिन रहस्यों को बहुत ही सरल भाषा हिंदी और पंजाबी में समझाया है। 6 उत्तराधिकारी और विरासत। 15 जून 1878 को स्वामी जी महाराज अपनी देह त्याग कर निजधाम सिधार गए। उनके बाद इस मत को उनके मुख्य शिष्यों जैसे हुजूर महाराज ने आगे बढ़ाया, जिससे आज ये मत दुनिया भर में अलग अलग शाखाओं जैसे आगरा और ब्यास के माध्यम से फैला हुआ है। नोट: राधा स्वामी परंपरा में राधा स्वामी मत के द्वितीय गुरु हुजूर महाराज। 1 जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम राय सालीग्राम बहादुर था, जिन्हें बाद में हुजूर महाराज के नाम से जाना गया। इनका जन्म 14 मार्च 1829 को आगरा के पिपल मंडी में हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पोस्टमास्टर जनरल के उच्च पद तक पहुंचे। 2 स्वामी जी महाराज से मिलन। हुजूर महाराज सत्य की खोज में थे। उनकी भेंट स्वामी जी महाराज प्रथम गुरु से 1858 में हुई। स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंचकर उन्हें आत्मिक शांति मिली और उन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वे स्वामी जी महाराज के सबसे अनन्य और समर्पित शिष्य माने जाते हैं। 3 राधा स्वामी नाम का प्रकट होना। कहा जाता है कि हुजूर महाराज की गहरी भक्ति और प्रेम को देखकर ही स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी शब्द का उच्चारण किया और इस मत को यह नाम मिला। हुजूर महाराज ने ही स्वामी जी महाराज को सार्वजनिक सत्संग शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। 4 गुरु गद्दी और कार्यकाल। 1878-1898 1878 में स्वामी जी महाराज के निजधाम सिधारने के बाद हुजूर महाराज ने राधा स्वामी मत की बागडोर संभाली। उन्होंने सत्संग का दायरा बढ़ाया और आम जनता के लिए इसे सुलभ बनाया। आध्यात्मिक सिद्धांतों को तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समझाया ताकि पढ़े लिखे लोग भी इसे समझ सकें। 5 मुख्य शिक्षाएं और साहित्य। हुजूर महाराज एक महान लेखक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं प्रेम बानी। इसमें विरह और प्रेम के पदों का सुंदर संकलन है। प्रेम पत्र। इसमें रूहानियत के गूढ़ रहस्यों को पत्र शैली में समझाया गया है। राधा स्वामी मत प्रकाश, जो अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। 6 व्यक्तित्व और देह त्याग। उनका व्यक्तित्व प्रेम और दया से भरा हुआ था। वे उच्च सरकारी पद पर होने के बावजूद अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने 6 दिसंबर 1898 को अपनी देह त्यागी।
आगरा के पिपल मंडी में उनका समाधि स्थल स्थित है, जहां आज भी हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मत के तृतीय गुरु महाराज साहब। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम पंडित ब्रह्मशंकर मिश्रा था, जिन्हें सत्संग जगत में महाराज साहब के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 28 मार्च 1861 को वाराणसी, बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वे बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। 2. गुरु शिष्य संबंध। महाराज साहब द्वितीय गुरु हुजूर महाराज के अनन्य शिष्य थे। वे बरेली में सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनका मन हमेशा अध्यात्म में रहता था। उन्होंने हुजूर महाराज की इतनी निष्काम सेवा की कि उन्हें मत का अगला उत्तराधिकारी चुना गया। 3. गुरु गद्दी। 1898-1907 1898 में हुजूर महाराज के निजधाम सिधारने के बाद महाराज साहब ने राधा स्वामी मत की जिम्मेदारी संभाली। उनके समय में सत्संग का बहुत विस्तार हुआ और शिक्षित समाज के लोग भी इस मार्ग की ओर तेजी से आकर्षित हुए। 4. विशेष योगदान। राधा स्वामी ट्रस्ट की स्थापना। महाराज साहब का सबसे बड़ा संगठनात्मक योगदान 1902 में राधा स्वामी ट्रस्ट की स्थापना करना था। उन्होंने मत की संपत्तियों और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया ताकि भविष्य में सत्संग का कार्य सुचारू रूप से चल सके। 5. दार्शनिक लेखन। महाराज साहब ने रूहानियत को दार्शनिक और वैज्ञानिक नजरिए से समझाने के लिए डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ नामक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने सृष्टि की रचना और आत्मा की यात्रा को बहुत ही तार्किक तरीके से समझाया है। 6. व्यक्तित्व और सादगी। वे अत्यंत गंभीर, विद्वान और शांत स्वभाव के महापुरुष थे। उनके वचनों में गहरा तर्क और प्रेम होता था। उन्होंने बनारस को अपना मुख्य केंद्र बनाया और वहीं से सत्संग की धारा प्रवाहित की। 7. देह त्याग। निरंतर कार्य और कठिन आध्यात्मिक अभ्यास के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 12 अक्टूबर 1907 को महाराज साहब अपनी देह त्याग कर निजधाम से धार गए। महत्व। महाराज साहब ने राधा स्वामी मत को एक संस्थागत रूप दिया और इसे बौद्धिक स्तर पर पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा। उनके बाद मत की अलग अलग शाखाओं ने अपने अपने तरीके से गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया। राधा स्वामी मत के चतुर्थ गुरु सरकार साहब। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम राय बहादुर कामता प्रसाद सिंह था, जिन्हें सत्संग में सरकार साहब के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1871 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मुरारपुर गांव में हुआ था। वे पेशे से एक उच्च अधिकारी थे। 2. आध्यात्मिक जुड़ाव। सरकार साहब तीसरे गुरु महाराज साहब के शिष्य थे। उन्होंने बहुत ही कम आयु में रूहानी मार्ग को अपना लिया था। उनका महाराज साहब के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण ही था कि उन्हें इस मत की चौथी कड़ी के रूप में चुना गया। 3. गुरु गद्दी। 1907-1913 1907 में महाराज साहब के निजधाम सिधारने के बाद उन्होंने सत्संग की कमान संभाली। उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने मुख्य रूप से गाजीपुर और बनारस को अपने सत्संग का केंद्र बनाया। 4. दयालबाग की नींव का आधार माना जाता है कि सरकार साहब ने ही उस भविष्य की कल्पना की थी जहां सत्संगी एक साथ रहकर सेवा और सुमिरन कर सकें। उन्होंने अपने मुख्य शिष्य साहब जी महाराज, जो बाद में 5वें गुरु बने, को इस दिशा में कार्य करने के लिए तैयार किया और उन्हें आगरा में दयालबाग जैसी आध्यात्मिक कॉलोनी बसाने का संकेत दिया। 5. मुख्य शिक्षाएं। अनुशासन। सरकार साहब जीवन में बहुत ही अनुशासित थे और सत्संगियों को भी वक्त का पाबंद रहने की शिक्षा देते थे। आंतरिक अभ्यास। उन्होंने सूरत शब्द योग के अभ्यास पर विशेष जोर दिया और बताया कि बिना गुरु की दया के आत्मा का उत्थान संभव नहीं है। 6. देह त्याग। सरकार साहब का स्वास्थ्य काफी समय तक खराब रहा। उन्होंने 7 दिसंबर 1913 को अपनी देह त्याग दी। उनके बाद गुरु परंपरा दयालबाग, आगरा और अन्य शाखाओं के माध्यम से आगे बढ़ी। विशेष बात, सरकार साहब को उनकी सादगी और ऊंचे रूहानी दर्जे के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस मत को एक ऐसी दिशा दी जहां रूहानियत के साथ साथ दुनियावी जिम्मेदारियों को भी सलीके से निभाने की सीख मिलती है। राधा स्वामी मत के पंचम गुरु साहब जी महाराज। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम सर आनंद स्वरूप था, जिन्हें श्रद्धालु साहब जी महाराज के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 6 अगस्त 1881 को उत्तर प्रदेश के अंबाला, अब हरियाणा में हुआ था। वे बहुत ही प्रतिभाशाली और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। 2. गुरु शिष्य संबंध। साहब जी महाराज चौथे गुरु सरकार साहब के अनन्य और सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माना और उनके बताए मार्ग पर चलकर मत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 3. दयालबाग की स्थापना। 1915 साहब जी महाराज का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान आगरा में दयालबाग की स्थापना करना है।
20 जनवरी 1915 को उन्होंने एक शहतूत का पौधा लगाकर इस पवित्र स्थान की नींव रखी थी। उनका सपना एक ऐसी जगह बनाना था जहां लोग आध्यात्मिक अभ्यास के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी से अपनी आजीविका भी कमा सकें। 4. शिक्षा और उद्योग पर जोर। उन्होंने बेहतर इंसान बनाने के लिए शिक्षा और उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने दयालबाग में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान खोले। उन्होंने डेयरी फार्म, टेक्सटाइल और अन्य छोटे उद्योग शुरू किए ताकि सत्संगी आत्मनिर्भर बन सकें। उनका नारा था, काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। 5. गुरु गद्दी 1913-1937। 1913 में सरकार साहब के बाद उन्होंने बागडोर संभाली। उनके समय में राधा स्वामी मत केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ। उनके कुशल प्रशासन और रूहानी शक्ति के कारण दयालबाग एक आदर्श समाज के रूप में उभरा। 6. मुख्य शिक्षाएं। आत्मनिर्भरता, हाथ से काम करने में कभी शर्म महसूस न करें। सहकारिता, मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना। आधुनिकता और आध्यात्म। उन्होंने सिखाया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। 7. देह त्याग, निरंतर कठिन परिश्रम और समाज सेवा के बाद 24 जून 1937 को साहब जी महाराज अपनी देह त्याग कर निजधाम सिधार गए। निष्कर्ष, साहब जी महाराज ने रूहानियत को केवल गुफाओं या कमरों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे खेतों, कारखानों और स्कूलों तक ले आए। आज का आधुनिक और सुंदर दयालबाग उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है। राधा स्वामी मत के प्रथम गुरु स्वामी जी महाराज। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। राधा स्वामी मत के संस्थापक और प्रथम गुरु सेठ शिव दयाल सिंह जी महाराज थे, जिन्हें श्रद्धालु स्वामी जी महाराज के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 25 अगस्त 1818 को आगरा के पन्नी गली में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला दिलवाली सिंह जी और माता का नाम महाबरकत जी था। 2. आध्यात्मिक खोज। स्वामी जी महाराज बचपन से ही बहुत शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक एक अंधेरे कमरे में बैठकर गहन ध्यान, सूरत शब्द योग का अभ्यास किया, जिसे आज भी आगरा के स्वामी बाग में देखा जा सकता है। 3. सत्संग की शुरुआत 1861। लंबे समय तक गुप्त अभ्यास करने के बाद उन्होंने बसंत पंचमी 15 फरवरी 1861 के दिन सार्वजनिक रूप से सत्संग जारी किया। यहीं से राधा स्वामी मत की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर ही शब्द या नाम की कमाई करके उसे पाया जा सकता है। 4. मुख्य शिक्षाएं। सूरत शब्द योग। आत्मा, सूरत को शब्द, आकाशवाणी धुनात्मक नाम के साथ जोड़ना। शाकाहार और सदाचार। आध्यात्मिक तरक्की के लिए शुद्ध खान पान और ऊंचा चरित्र अनिवार्य है। कुल मालिक की भक्ति। उन्होंने बताया कि राधा स्वामी नाम ही उस परम सत्ता का असली नाम है। 5. ग्रंथ और रचनाएं। स्वामी जी महाराज ने अपनी शिक्षाओं को सार वचन, छंद और गद्य नामक पुस्तक में संकलित किया। इसमें उन्होंने रूहानियत के कठिन रहस्यों को बहुत ही सरल भाषा हिंदी और पंजाबी में समझाया है। 6. उत्तराधिकारी और विरासत। 15 जून 1878 को स्वामी जी महाराज अपनी देह त्याग कर निजधाम सिधार गए। उनके बाद इस मत को उनके मुख्य शिष्यों जैसे हुजूर महाराज ने आगे बढ़ाया, जिससे आज ये मत दुनिया भर में अलग अलग शाखाओं जैसे आगरा और ब्यास के माध्यम से फैला हुआ है। नोट: राधा स्वामी परंपरा में राधा स्वामी मत के द्वितीय गुरु हुजूर महाराज। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम राय सालीग्राम बहादुर था, जिन्हें बाद में हुजूर महाराज के नाम से जाना गया। इनका जन्म 14 मार्च 1829 को आगरा के पिपल मंडी में हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पोस्टमास्टर जनरल के उच्च पद तक पहुंचे। 2. स्वामी जी महाराज से मिलन। हुजूर महाराज सत्य की खोज में थे। उनकी भेंट स्वामी जी महाराज प्रथम गुरु से 1858 में हुई। स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंचकर उन्हें आत्मिक शांति मिली और उन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वे स्वामी जी महाराज के सबसे अनन्य और समर्पित शिष्य माने जाते हैं। 3. राधा स्वामी नाम का प्रकट होना। कहा जाता है कि हुजूर महाराज की गहरी भक्ति और प्रेम को देखकर ही स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी शब्द का उच्चारण किया और इस मत को यह नाम मिला। हुजूर महाराज ने ही स्वामी जी महाराज को सार्वजनिक सत्संग शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। 4. गुरु गद्दी और कार्यकाल। 1878-1898। 1878 में स्वामी जी महाराज के निजधाम सिधारने के बाद हुजूर महाराज ने राधा स्वामी मत की बागडोर संभाली। उन्होंने सत्संग का दायरा बढ़ाया और आम जनता के लिए इसे सुलभ बनाया। आध्यात्मिक सिद्धांतों को तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समझाया ताकि पढ़े लिखे लोग भी इसे समझ सकें। 5. मुख्य शिक्षाएं और साहित्य। हुजूर महाराज एक महान लेखक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं
प्रेम बानी, इसमें विरह और प्रेम के पदों का सुंदर संकलन है। प्रेम पत्र, इसमें रूहानियत के गूढ़ रहस्यों को पत्र शैली में समझाया गया है। राधा स्वामी मत प्रकाश, जो अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। 6. व्यक्तित्व और देह त्याग, उनका व्यक्तित्व प्रेम और दया से भरा हुआ था। वे उच्च सरकारी पद पर होने के बावजूद अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने 6 दिसंबर 1898 को अपनी देह त्यागी। आगरा के पिपल मंडी में उनका समाधि स्थल स्थित है, जहां आज भी हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मत के तृतीय गुरु महाराज साहब। 1. जन्म और परिचय, इनका शुभ नाम पंडित ब्रह्मशंकर मिश्रा था, जिन्हें सत्संग जगत में महाराज साहब के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 28 मार्च 1861 को वाराणसी, बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वे बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। 2. गुरु शिष्य संबंध, महाराज साहब द्वितीय गुरु हुजूर महाराज के अनन्य शिष्य थे। वे बरेली में सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनका मन हमेशा अध्यात्म में रहता था। उन्होंने हुजूर महाराज की इतनी निष्काम सेवा की कि उन्हें मत का अगला उत्तराधिकारी चुना गया। 3. गुरु गद्दी, 1898-1907 1898 में हुजूर महाराज के निजधाम सिधारने के बाद महाराज साहब ने राधा स्वामी मत की जिम्मेदारी संभाली। उनके समय में सत्संग का बहुत विस्तार हुआ और शिक्षित समाज के लोग भी इस मार्ग की ओर तेजी से आकर्षित हुए। 4. विशेष योगदान, राधा स्वामी ट्रस्ट की स्थापना। महाराज साहब का सबसे बड़ा संगठनात्मक योगदान 1902 में राधा स्वामी ट्रस्ट की स्थापना करना था। उन्होंने मत की संपत्तियों और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया, ताकि भविष्य में सत्संग का कार्य सुचारू रूप से चल सके। 5. दार्शनिक लेखन, महाराज साहब ने रूहानियत को दार्शनिक और वैज्ञानिक नजरिए से समझाने के लिए डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ नामक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने सृष्टि की रचना और आत्मा की यात्रा को बहुत ही तार्किक तरीके से समझाया है। 6. व्यक्तित्व और सादगी, वे अत्यंत गंभीर, विद्वान और शांत स्वभाव के महापुरुष थे। उनके वचनों में गहरा तर्क और प्रेम होता था। उन्होंने बनारस को अपना मुख्य केंद्र बनाया और वहीं से सत्संग की धारा प्रवाहित की। 7. देह त्याग, निरंतर कार्य और कठिन आध्यात्मिक अभ्यास के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 12 अक्टूबर 1907 को महाराज साहब अपनी देह त्याग कर निजधाम से धार गए। महत्व, महाराज साहब ने राधा स्वामी मत को एक संस्थागत रूप दिया और इसे बौद्धिक स्तर पर पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा। उनके बाद मत की अलग अलग शाखाओं ने अपने अपने तरीके से गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया। राधा स्वामी मत के चतुर्थ गुरु सरकार साहब। 1. जन्म और परिचय, इनका शुभ नाम राय बहादुर कामता प्रसाद सिंह था, जिन्हें सत्संग में सरकार साहब के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1871 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मुरारपुर गांव में हुआ था। वे पेशे से एक उच्च अधिकारी थे। 2. आध्यात्मिक जुड़ाव, सरकार साहब तीसरे गुरु महाराज साहब के शिष्य थे। उन्होंने बहुत ही कम आयु में रूहानी मार्ग को अपना लिया था। उनका महाराज साहब के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण ही था कि उन्हें इस मत की चौथी कड़ी के रूप में चुना गया। 3. गुरु गद्दी, 1907-1913 1907 में महाराज साहब के निजधाम सिधारने के बाद उन्होंने सत्संग की कमान संभाली। उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने मुख्य रूप से गाजीपुर और बनारस को अपने सत्संग का केंद्र बनाया। 4. दयालबाग की नींव का आधार माना जाता है कि सरकार साहब ने ही उस भविष्य की कल्पना की थी जहां सत्संगी एक साथ रहकर सेवा और सुमिरन कर सकें। उन्होंने अपने मुख्य शिष्य साहब जी महाराज, जो बाद में 5वें गुरु बने, को इस दिशा में कार्य करने के लिए तैयार किया और उन्हें आगरा में दयालबाग जैसी आध्यात्मिक कॉलोनी बसाने का संकेत दिया। 5. मुख्य शिक्षाएं। अनुशासन, सरकार साहब जीवन में बहुत ही अनुशासित थे और सत्संगियों को भी वक्त का पाबंद रहने की शिक्षा देते थे। आंतरिक अभ्यास, उन्होंने सूरत शब्द योग के अभ्यास पर विशेष जोर दिया और बताया कि बिना गुरु की दया के आत्मा का उत्थान संभव नहीं है। 6. देह त्याग, सरकार साहब का स्वास्थ्य काफी समय तक खराब रहा। उन्होंने 7 दिसंबर 1913 को अपनी देह त्याग दी। उनके बाद गुरु परंपरा दयालबाग, आगरा और अन्य शाखाओं के माध्यम से आगे बढ़ी। विशेष बात, सरकार साहब को उनकी सादगी और ऊंचे रूहानी दर्जे के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस मत को एक ऐसी दिशा दी जहां रूहानियत के साथ साथ दुनियावी जिम्मेदारियों को भी सलीके से निभाने की सीख मिलती है। राधा स्वामी मत के पंचम गुरु साहब जी महाराज। 1. जन्म और परिचय, इनका शुभ नाम सर आनंद स्वरूप था, जिन्हें श्रद्धालु साहब जी महाराज के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 6 अगस्त 1881 को उत्तर प्रदेश के अंबाला, अब हरियाणा में हुआ था।
वे बहुत ही प्रतिभाशाली और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। 2. गुरु शिष्य संबंध साहब जी महाराज। चौथे, गुरु सरकार साहब के अनन्य और सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माना और उनके बताए मार्ग पर चलकर मत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 3. दयालबाग की स्थापना। 1915 साहब जी महाराज का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान आगरा में दयालबाग की स्थापना करना है। 20 जनवरी 1915 को उन्होंने एक शहतूत का पौधा लगाकर इस पवित्र स्थान की नींव रखी थी। उनका सपना एक ऐसी जगह बनाना था जहां लोग आध्यात्मिक अभ्यास के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी से अपनी आजीविका भी कमा सकें। 4. शिक्षा और उद्योग पर जोर। उन्होंने बेहतर इंसान बनाने के लिए शिक्षा और उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने दयालबाग में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान खोले। उन्होंने डेयरी फार्म, टेक्सटाइल और अन्य छोटे उद्योग शुरू किए ताकि सत्संगी आत्मनिर्भर बन सकें। उनका नारा था, काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। 5. गुरु गद्दी। 1913-1937। 1913 में सरकार साहब के बाद उन्होंने बागडोर संभाली। उनके समय में राधा स्वामी मत केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ। उनके कुशल प्रशासन और रूहानी शक्ति के कारण दयालबाग एक आदर्श समाज के रूप में उभरा। 6. मुख्य शिक्षाएं। आत्मनिर्भरता, हाथ से काम करने में कभी शर्म महसूस न करें। सहकारिता, मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना। आधुनिकता और आध्यात्म। उन्होंने सिखाया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। 7. देह त्याग, निरंतर कठिन परिश्रम और समाज सेवा के बाद 24 जून 1937 को साहब जी महाराज अपनी देह त्याग कर निजधाम से धार गए। निष्कर्ष, साहब जी महाराज ने रूहानियत को केवल गुफाओं या कमरों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे खेतों, कारखानों और स्कूलों तक ले आए। आज का आधुनिक और सुंदर दयालबाग उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਅਜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਚੁਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਪੀਸਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਮਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 1. ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮੂਨ ਬੇਗ ਡਰਾਈ ਮੂਨ ਬੇਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਜੁਲਾਈ 1905 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। 2. ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 1937 ਤੋਂ 1975। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਜਧਾਮ ਸਿਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1937 ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਆਲਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 3. ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਬਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲਬਾਗ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। 4. ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ। 5.
ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 14 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਜਧਾਮ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ MB ਲਾਲ ਜੀ ਡਰਾਈਵ MB ਲਾਲ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1 ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੇਵਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2 ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਣਕ ਚੁਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 3 ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 4 ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ स्वामी जी। राधा स्वामी मत के प्रथम गुरु स्वामी जी महाराज। 1 जन्म और प्रारंभिक जीवन। राधा स्वामी मत के संस्थापक और प्रथम गुरु सेठ शिव दयाल सिंह जी महाराज थे, जिन्हें श्रद्धालु स्वामी जी महाराज के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 25 अगस्त 1818 को आगरा के पन्नी गली में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला दिलवाली सिंह जी और माता का नाम महाबरकत जी था। 2 आध्यात्मिक खोज। स्वामी जी महाराज बचपन से ही बहुत शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक एक अंधेरे कमरे में बैठकर गहन ध्यान सूरत शब्द योग का अभ्यास किया, जिसे आज भी आगरा के स्वामी बाग में देखा जा सकता है। 3 सत्संग की शुरुआत 1861। लंबे समय तक गुप्त अभ्यास करने के बाद उन्होंने बसंत पंचमी 15 फरवरी 1861 के दिन सार्वजनिक रूप से सत्संग जारी किया। यहीं से राधा स्वामी मत की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर ही शब्द या नाम की कमाई करके उसे पाया जा सकता है। 4 मुख्य शिक्षाएं। सूरत शब्द योग। आत्मा। सूरत को शब्द आकाशवाणी धुनात्मक नाम के साथ जोड़ना। शाकाहार और सदाचार। आध्यात्मिक तरक्की के लिए शुद्ध खान पान और ऊंचा चरित्र अनिवार्य है। कुल मालिक की भक्ति। उन्होंने बताया कि राधा स्वामी नाम ही उस परम सत्ता का असली नाम है। 5 ग्रंथ और रचनाएं। स्वामी जी महाराज ने अपनी शिक्षाओं को सार वचन, छंद और गद्य नामक पुस्तक में संकलित किया। इसमें उन्होंने रूहानियत के कठिन रहस्यों को बहुत ही सरल भाषा हिंदी और पंजाबी में समझाया है। 6 उत्तराधिकारी और विरासत। 15 जून 1878 को स्वामी जी महाराज अपनी देह त्याग कर निजधाम सिधार गए। उनके बाद इस मत को उनके मुख्य शिष्यों जैसे हुजूर महाराज ने आगे बढ़ाया, जिससे आज ये मत दुनिया भर में अलग अलग शाखाओं जैसे आगरा और ब्यास के माध्यम से फैला हुआ है। नोट: राधा स्वामी परंपरा में राधा स्वामी मत के द्वितीय गुरु हुजूर महाराज। 1 जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम राय सालीग्राम बहादुर था, जिन्हें बाद में हुजूर महाराज के नाम से जाना गया। इनका जन्म 14 मार्च 1829 को आगरा के पिपल मंडी में हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पोस्ट मास्टर जनरल के उच्च पद तक पहुंचे। 2 स्वामी जी महाराज से मिलन। हुजूर महाराज सत्य की खोज में थे। उनकी भेंट
स्वामी जी महाराज प्रथम गुरु से 1858 में हुई। स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंचकर उन्हें आत्मिक शांति मिली और उन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वे स्वामी जी महाराज के सबसे अनन्य और समर्पित शिष्य माने जाते हैं। 3. राधा स्वामी नाम का प्रकट होना कहा जाता है कि हुजूर महाराज की गहरी भक्ति और प्रेम को देखकर ही स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी शब्द का उच्चारण किया और इस मत को यह नाम मिला। हुजूर महाराज ने ही स्वामी जी महाराज को सार्वजनिक सत्संग शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। 4. गुरु गद्दी और कार्यकाल 1878-1898। 1878 में स्वामी जी महाराज के निजधाम से धारने के बाद हुजूर महाराज ने राधा स्वामी मत की बागडोर संभाली। उन्होंने सत्संग का दायरा बढ़ाया और आम जनता के लिए इसे सुलभ बनाया। आध्यात्मिक सिद्धांतों को तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समझाया ताकि पढ़े लिखे लोग भी इसे समझ सकें। 5. मुख्य शिक्षाएं और साहित्य। हुजूर महाराज एक महान लेखक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की जिनमें प्रमुख हैं प्रेम बानी, इसमें विरह और प्रेम के पदों का सुंदर संकलन है। प्रेम पत्र, इसमें रूहानियत के गूढ़ रहस्यों को पत्र शैली में समझाया गया है। राधा स्वामी मत प्रकाश, जो अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। 6. व्यक्तित्व और देह त्याग। उनका व्यक्तित्व प्रेम और दया से भरा हुआ था। वे उच्च सरकारी पद पर होने के बावजूद अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने 6 दिसंबर 1898 को अपनी देह त्यागी। आगरा के पिपल मंडी में उनका समाधि स्थल स्थित है, जहां आज भी हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मत के तृतीय गुरु महाराज साहब। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम पंडित ब्रह्मशंकर मिश्रा था, जिन्हें सत्संग जगत में महाराज साहब के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 28 मार्च 1861 को वाराणसी, बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वे बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। 2. गुरु शिष्य संबंध। महाराज साहब द्वितीय गुरु हुजूर महाराज के अनन्य शिष्य थे। वे बरेली में सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनका मन हमेशा अध्यात्म में रहता था। उन्होंने हुजूर महाराज की इतनी निष्काम सेवा की कि उन्हें मत का अगला उत्तराधिकारी चुना गया। 3. गुरु गद्दी 1898-1907। 1898 में हुजूर महाराज के निजधाम से धारने के बाद महाराज साहब ने राधा स्वामी मत की जिम्मेदारी संभाली। उनके समय में सत्संग का बहुत विस्तार हुआ और शिक्षित समाज के लोग भी इस मार्ग की ओर तेजी से आकर्षित हुए। 4. विशेष योगदान। राधा स्वामी ट्रस्ट की स्थापना। महाराज साहब का सबसे बड़ा संगठनात्मक योगदान 1902 में राधा स्वामी ट्रस्ट की स्थापना करना था। उन्होंने मत की संपत्तियों और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया ताकि भविष्य में सत्संग का कार्य सुचारू रूप से चल सके। 5. दार्शनिक लेखन। महाराज साहब ने रूहानियत को दार्शनिक और वैज्ञानिक नजरिए से समझाने के लिए डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ नामक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने सृष्टि की रचना और आत्मा की यात्रा को बहुत ही तार्किक तरीके से समझाया है। 6. व्यक्तित्व और सादगी। वे अत्यंत गंभीर, विद्वान और शांत स्वभाव के महापुरुष थे। उनके वचनों में गहरा तर्क और प्रेम होता था। उन्होंने बनारस को अपना मुख्य केंद्र बनाया और वहीं से सत्संग की धारा प्रवाहित की। 7. देह त्याग। निरंतर कार्य और कठिन आध्यात्मिक अभ्यास के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 12 अक्टूबर 1907 को महाराज साहब अपनी देह त्याग कर निजधाम से धार गए। महत्व। महाराज साहब ने राधा स्वामी मत को एक संस्थागत रूप दिया और इसे बौद्धिक स्तर पर पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा। उनके बाद मत की अलग अलग शाखाओं ने अपने अपने तरीके से गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया। राधा स्वामी मत के चतुर्थ गुरु सरकार साहब। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम राय बहादुर कामता प्रसाद सिंह था, जिन्हें सत्संग में सरकार साहब के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1871 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मुरारपुर गांव में हुआ था। वे पेशे से एक उच्च अधिकारी थे। 2. आध्यात्मिक जुड़ाव। सरकार साहब तीसरे गुरु महाराज साहब के शिष्य थे। उन्होंने बहुत ही कम आयु में रूहानी मार्ग को अपना लिया था। उनका महाराज साहब के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण ही था कि उन्हें इस मत की चौथी कड़ी के रूप में चुना गया। 3. गुरु गद्दी 1907-1913। 1907 में महाराज साहब के निजधाम से धारने के बाद उन्होंने सत्संग की कमान संभाली। उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने मुख्य रूप से गाजीपुर और बनारस को अपने सत्संग का केंद्र बनाया। 4. दयालबाग की नींव का आधार माना जाता है कि सरकार साहब ने ही उस भविष्य की कल्पना की थी जहां सत्संगी एक साथ रहकर सेवा और सुमिरन कर सकें। उन्होंने अपने मुख्य शिष्य साहब जी महाराज, जो बाद में 5वें गुरु बने, को इस दिशा में कार्य करने के लिए तैयार किया
और उन्हें आगरा में दयालबाग जैसी आध्यात्मिक कॉलोनी बसाने का संकेत दिया। 5. मुख्य शिक्षाएं। अनुशासन। सरकार साहब जीवन में बहुत ही अनुशासित थे और सत्संगियों को भी वक्त का पाबंद रहने की शिक्षा देते थे। आंतरिक अभ्यास। उन्होंने सूरत शब्द योग के अभ्यास पर विशेष जोर दिया और बताया कि बिना गुरु की दया के आत्मा का उत्थान संभव नहीं है। 6. देह त्याग। सरकार साहब का स्वास्थ्य काफी समय तक खराब रहा। उन्होंने 7 दिसंबर 1913 को अपनी देह त्याग दी। उनके बाद गुरु परंपरा दयालबाग, आगरा और अन्य शाखाओं के माध्यम से आगे बढ़ी। विशेष बात, सरकार साहब को उनकी सादगी और ऊंचे रूहानी दर्जे के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस मत को एक ऐसी दिशा दी जहां रूहानियत के साथ साथ दुनियावी जिम्मेदारियों को भी सलीके से निभाने की सीख मिलती है। राधा स्वामी मत के पंचम गुरु साहब जी महाराज। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम सर आनंद स्वरूप था, जिन्हें श्रद्धालु साहब जी महाराज के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 6 अगस्त 1881 को उत्तर प्रदेश के अंबाला, अब हरियाणा में हुआ था। वे बहुत ही प्रतिभाशाली और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। 2. गुरु शिष्य संबंध। साहब जी महाराज चौथे गुरु सरकार साहब के अनन्य और सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माना और उनके बताए मार्ग पर चलकर मत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 3. दयालबाग की स्थापना। 1915 साहब जी महाराज का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान आगरा में दयालबाग की स्थापना करना है। 20 जनवरी 1915 को उन्होंने एक शहतूत का पौधा लगाकर इस पवित्र स्थान की नींव रखी थी। उनका सपना एक ऐसी जगह बनाना था जहां लोग आध्यात्मिक अभ्यास के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी से अपनी आजीविका भी कमा सकें। 4. शिक्षा और उद्योग पर जोर। उन्होंने बेहतर इंसान बनाने के लिए शिक्षा और उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने दयालबाग में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान खोले। उन्होंने डेयरी फार्म, टेक्सटाइल और अन्य छोटे उद्योग शुरू किए ताकि सत्संगी आत्मनिर्भर बन सकें। उनका नारा था, काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। 5. गुरु गद्दी। 1913-1937। 1913 में सरकार साहब के बाद उन्होंने बागडोर संभाली। उनके समय में राधा स्वामी मत केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ। उनके कुशल प्रशासन और रूहानी शक्ति के कारण दयालबाग एक आदर्श समाज के रूप में उभरा। 6. मुख्य शिक्षाएं। आत्मनिर्भरता। हाथ से काम करने में कभी शर्म महसूस न करें। सहकारिता, मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना। आधुनिकता और आध्यात्म। उन्होंने सिखाया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। 7. देह त्याग। निरंतर कठिन परिश्रम और समाज सेवा के बाद 24 जून 1937 को साहब जी महाराज अपनी देह त्याग कर निजधाम से धार गए। निष्कर्ष, साहब जी महाराज ने रूहानियत को केवल गुफाओं या कमरों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे खेतों, कारखानों और स्कूलों तक ले आए। आज का आधुनिक और सुंदर दयालबाग उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਅਜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਚੁਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਪੀਸਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਮਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 1. ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮੂਨਬੇਗ ਡਰਾਈ ਮੂਨਬੇਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਜੁਲਾਈ 1905 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। 2. ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 1937 ਤੋਂ 1975। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਜਧਾਮ ਸਿਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
1937 ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਆਲ ਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 3 ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲ ਬਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। 4 ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ। 5 ਦੇਹ ਤਿਆਗ। ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 14 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਜਧਾਮ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ MB ਲਾਲ ਜੀ ਡਰਾਈਵ MB ਲਾਲ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1 ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੇਵਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2 ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਣਕ ਚੁਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 3 ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 4 ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ स्वामी जी। राधा स्वामी मत के प्रथम गुरु स्वामी जी महाराज। 1 जन्म और प्रारंभिक जीवन। राधा स्वामी मत के संस्थापक और प्रथम गुरु सेठ शिव दयाल सिंह जी महाराज थे, जिन्हें श्रद्धालु स्वामी जी महाराज के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 25 अगस्त 1818 को आगरा के पन्नी गली में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला दिलवाली सिंह जी और माता का नाम महाबरकत जी था। 2 आध्यात्मिक खोज। स्वामी जी महाराज बचपन से ही बहुत शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक एक अंधेरे कमरे में बैठकर गहन ध्यान सूरत शब्द योग का अभ्यास किया, जिसे आज भी आगरा के स्वामी बाग में देखा जा सकता है। 3 सत्संग की शुरुआत 1861। लंबे समय तक गुप्त अभ्यास करने के बाद उन्होंने बसंत पंचमी 15 फरवरी 1861 के दिन सार्वजनिक रूप से सत्संग जारी किया। यहीं से राधा स्वामी मत की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर ही शब्द या नाम की कमाई करके उसे पाया जा सकता है। 4 मुख्य शिक्षाएं। सूरत शब्द योग। आत्मा। सूरत को शब्द आकाशवाणी धुनात्मक नाम के साथ जोड़ना। शाकाहार और सदाचार। आध्यात्मिक तरक्की के लिए शुद्ध खान पान और ऊंचा चरित्र अनिवार्य है। कुल मालिक की भक्ति।
उन्होंने बताया कि राधा स्वामी नाम ही उस परम सत्ता का असली नाम है। 5 ग्रंथ और रचनाएं स्वामी जी महाराज ने अपनी शिक्षाओं को सार वचन, छंद और गद्य नामक पुस्तक में संकलित किया। इसमें उन्होंने रूहानियत के कठिन रहस्यों को बहुत ही सरल भाषा हिंदी और पंजाबी में समझाया है। 6 उत्तराधिकारी और विरासत। 15 जून 1878 को स्वामी जी महाराज अपनी देह त्याग कर निजधाम सिधार गए। उनके बाद इस मत को उनके मुख्य शिष्यों जैसे हुजूर महाराज ने आगे बढ़ाया, जिससे आज ये मत दुनिया भर में अलग अलग शाखाओं जैसे आगरा और ब्यास के माध्यम से फैला हुआ है। नोट: राधा स्वामी परंपरा में राधा स्वामी मत के द्वितीय गुरु हुजूर महाराज। 1 जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम राय सालीग्राम बहादुर था, जिन्हें बाद में हुजूर महाराज के नाम से जाना गया। इनका जन्म 14 मार्च 1829 को आगरा के पिपल मंडी में हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पोस्टमास्टर जनरल के उच्च पद तक पहुंचे। 2 स्वामी जी महाराज से मिलन। हुजूर महाराज सत्य की खोज में थे। उनकी भेंट स्वामी जी महाराज प्रथम गुरु से 1858 में हुई। स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंचकर उन्हें आत्मिक शांति मिली और उन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वे स्वामी जी महाराज के सबसे अनन्य और समर्पित शिष्य माने जाते हैं। 3 राधा स्वामी नाम का प्रकट होना। कहा जाता है कि हुजूर महाराज की गहरी भक्ति और प्रेम को देखकर ही स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी शब्द का उच्चारण किया और इस मत को यह नाम मिला। हुजूर महाराज ने ही स्वामी जी महाराज को सार्वजनिक सत्संग शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। 4 गुरु गद्दी और कार्यकाल। 1878-1898 1878 में स्वामी जी महाराज के निजधाम सिधारने के बाद हुजूर महाराज ने राधा स्वामी मत की बागडोर संभाली। उन्होंने सत्संग का दायरा बढ़ाया और आम जनता के लिए इसे सुलभ बनाया। आध्यात्मिक सिद्धांतों को तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समझाया ताकि पढ़े लिखे लोग भी इसे समझ सकें। 5 मुख्य शिक्षाएं और साहित्य। हुजूर महाराज एक महान लेखक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं प्रेम बानी। इसमें विरह और प्रेम के पदों का सुंदर संकलन है। प्रेम पत्र। इसमें रूहानियत के गूढ़ रहस्यों को पत्र शैली में समझाया गया है। राधा स्वामी मत प्रकाश, जो अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। 6 व्यक्तित्व और देह त्याग। उनका व्यक्तित्व प्रेम और दया से भरा हुआ था। वे उच्च सरकारी पद पर होने के बावजूद अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने 6 दिसंबर 1898 को अपनी देह त्यागी। आगरा के पिपल मंडी में उनका समाधि स्थल स्थित है, जहां आज भी हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मत के तृतीय गुरु महाराज साहब। 1 जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम पंडित ब्रह्मशंकर मिश्रा था, जिन्हें सत्संग जगत में महाराज साहब के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 28 मार्च 1861 को वाराणसी, बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वे बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। 2 गुरु शिष्य संबंध। महाराज साहब द्वितीय गुरु हुजूर महाराज के अनन्य शिष्य थे। वे बरेली में सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनका मन हमेशा अध्यात्म में रहता था। उन्होंने हुजूर महाराज की इतनी निष्काम सेवा की कि उन्हें मत का अगला उत्तराधिकारी चुना गया। 3 गुरु गद्दी। 1898-1907 1898 में हुजूर महाराज के निजधाम सिधारने के बाद महाराज साहब ने राधा स्वामी मत की जिम्मेदारी संभाली। उनके समय में सत्संग का बहुत विस्तार हुआ और शिक्षित समाज के लोग भी इस मार्ग की ओर तेजी से आकर्षित हुए। 4 विशेष योगदान। राधा स्वामी ट्रस्ट की स्थापना। महाराज साहब का सबसे बड़ा संगठनात्मक योगदान 1902 में राधा स्वामी ट्रस्ट की स्थापना करना था। उन्होंने मत की संपत्तियों और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया ताकि भविष्य में सत्संग का कार्य सुचारू रूप से चल सके। 5 दार्शनिक लेखन। महाराज साहब ने रूहानियत को दार्शनिक और वैज्ञानिक नजरिए से समझाने के लिए डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ नामक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने सृष्टि की रचना और आत्मा की यात्रा को बहुत ही तार्किक तरीके से समझाया है। 6 व्यक्तित्व और सादगी। वे अत्यंत गंभीर, विद्वान और शांत स्वभाव के महापुरुष थे। उनके वचनों में गहरा तर्क और प्रेम होता था। उन्होंने बनारस को अपना मुख्य केंद्र बनाया और वहीं से सत्संग की धारा प्रवाहित की। 7 देह त्याग। निरंतर कार्य और कठिन आध्यात्मिक अभ्यास के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 12 अक्टूबर 1907 को महाराज साहब अपनी देह त्याग कर निजधाम से धार गए। महत्व। महाराज साहब ने राधा स्वामी मत को एक संस्थागत रूप दिया और इसे बौद्धिक स्तर पर पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा। उनके बाद मत की अलग अलग शाखाओं ने अपने अपने तरीके से गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया। राधा स्वामी मत के चतुर्थ गुरु सरकार साहब। 1
जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम राय बहादुर कामता प्रसाद सिंह था, जिन्हें सत्संग में सरकार साहब के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1871 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मुरारपुर गांव में हुआ था। वे पेशे से एक उच्च अधिकारी थे। 2. आध्यात्मिक जुड़ाव। सरकार साहब तीसरे गुरु महाराज साहब के शिष्य थे। उन्होंने बहुत ही कम आयु में रूहानी मार्ग को अपना लिया था। उनका महाराज साहब के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण ही था कि उन्हें इस मत की चौथी कड़ी के रूप में चुना गया। 3. गुरु गद्दी 1907-1913। 1907 में महाराज साहब के निजधाम सिधारने के बाद उन्होंने सत्संग की कमान संभाली। उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने मुख्य रूप से गाजीपुर और बनारस को अपने सत्संग का केंद्र बनाया। 4. दयालबाग की नींव का आधार माना जाता है कि सरकार साहब ने ही उस भविष्य की कल्पना की थी जहां सत्संगी एक साथ रहकर सेवा और सुमिरन कर सकें। उन्होंने अपने मुख्य शिष्य साहब जी महाराज, जो बाद में 5वें गुरु बने, को इस दिशा में कार्य करने के लिए तैयार किया और उन्हें आगरा में दयालबाग जैसी आध्यात्मिक कॉलोनी बसाने का संकेत दिया। 5. मुख्य शिक्षाएं। अनुशासन। सरकार साहब जीवन में बहुत ही अनुशासित थे और सत्संगियों को भी वक्त का पाबंद रहने की शिक्षा देते थे। आंतरिक अभ्यास। उन्होंने सूरत शब्द योग के अभ्यास पर विशेष जोर दिया और बताया कि बिना गुरु की दया के आत्मा का उत्थान संभव नहीं है। 6. देह त्याग। सरकार साहब का स्वास्थ्य काफी समय तक खराब रहा। उन्होंने 7 दिसंबर 1913 को अपनी देह त्याग दी। उनके बाद गुरु परंपरा दयालबाग, आगरा और अन्य शाखाओं के माध्यम से आगे बढ़ी। विशेष बात, सरकार साहब को उनकी सादगी और ऊंचे रूहानी दर्जे के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस मत को एक ऐसी दिशा दी जहां रूहानियत के साथ साथ दुनियावी जिम्मेदारियों को भी सलीके से निभाने की सीख मिलती है। राधा स्वामी मत के पंचम गुरु साहब जी महाराज। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम सर आनंद स्वरूप था, जिन्हें श्रद्धालु साहब जी महाराज के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 6 अगस्त 1881 को उत्तर प्रदेश के अंबाला, अब हरियाणा में हुआ था। वे बहुत ही प्रतिभाशाली और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। 2. गुरु शिष्य संबंध। साहब जी महाराज चौथे गुरु सरकार साहब के अनन्य और सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माना और उनके बताए मार्ग पर चलकर मत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 3. दयालबाग की स्थापना। 1915 साहब जी महाराज का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान आगरा में दयालबाग की स्थापना करना है। 20 जनवरी 1915 को उन्होंने एक शहतूत का पौधा लगाकर इस पवित्र स्थान की नींव रखी थी। उनका सपना एक ऐसी जगह बनाना था जहां लोग आध्यात्मिक अभ्यास के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी से अपनी आजीविका भी कमा सकें। 4. शिक्षा और उद्योग पर जोर। उन्होंने बेहतर इंसान बनाने के लिए शिक्षा और उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने दयालबाग में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान खोले। उन्होंने डेयरी फार्म, टेक्सटाइल और अन्य छोटे उद्योग शुरू किए ताकि सत्संगी आत्मनिर्भर बन सकें। उनका नारा था, काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। 5. गुरु गद्दी 1913-1937। 1913 में सरकार साहब के बाद उन्होंने बागडोर संभाली। उनके समय में राधा स्वामी मत केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ। उनके कुशल प्रशासन और रूहानी शक्ति के कारण दयालबाग एक आदर्श समाज के रूप में उभरा। 6. मुख्य शिक्षाएं। आत्मनिर्भरता। हाथ से काम करने में कभी शर्म महसूस न करें। सहकारिता, मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना। आधुनिकता और आध्यात्म। उन्होंने सिखाया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। 7. देह त्याग। निरंतर कठिन परिश्रम और समाज सेवा के बाद 24 जून 1937 को साहब जी महाराज अपनी देह त्याग कर निजधाम सिधार गए। निष्कर्ष, साहब जी महाराज ने रूहानियत को केवल गुफाओं या कमरों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे खेतों, कारखानों और स्कूलों तक ले आए। आज का आधुनिक और सुंदर दयालबाग उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਅਜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਚੁਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਪੀਸਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ
ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਮੱਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 1 ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮੂਨਬੇਗ ਡਰਾਈ ਮੂਨਬੇਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਜੁਲਾਈ 1905 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। 2 ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 1937 ਤੋਂ 1975। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਜਧਾਮ ਸਿਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1937 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਆਲਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 3 ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਬਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲਬਾਗ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। 4 ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ। 5 ਦੇਹ ਤਿਆਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 14 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਜਧਾਮ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ MB ਲਾਲ ਜੀ ਡਰਾਈਵ MB ਲਾਲ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1 ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੇਵਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2 ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਣਕ ਚੁਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 3 ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 4 ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी मत के प्रथम गुरु स्वामी जी महाराज। 1 जन्म और प्रारंभिक जीवन। राधा स्वामी मत के संस्थापक और प्रथम गुरु सेठ शिव दयाल सिंह जी महाराज थे, जिन्हें श्रद्धालु स्वामी जी महाराज के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 25 अगस्त 1818 को आगरा के पन्नी गली में हुआ था।
उनके पिता का नाम लाला दिलवाली सिंह जी और माता का नाम महाबरकत जी था। 2. आध्यात्मिक खोज। स्वामी जी महाराज बचपन से ही बहुत शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक एक अंधेरे कमरे में बैठकर गहन ध्यान सूरत शब्द योग का अभ्यास किया, जिसे आज भी आगरा के स्वामी बाग में देखा जा सकता है। 3. सत्संग की शुरुआत 1861। लंबे समय तक गुप्त अभ्यास करने के बाद उन्होंने बसंत पंचमी 15 फरवरी 1861 के दिन सार्वजनिक रूप से सत्संग जारी किया। यहीं से राधा स्वामी मत की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर ही शब्द या नाम की कमाई करके उसे पाया जा सकता है। 4. मुख्य शिक्षाएं। सूरत शब्द योग। आत्मा। सूरत को शब्द आकाशवाणी धुनात्मक नाम के साथ जोड़ना। शाकाहार और सदाचार। आध्यात्मिक तरक्की के लिए शुद्ध खान पान और ऊंचा चरित्र अनिवार्य है। कुल मालिक की भक्ति। उन्होंने बताया कि राधा स्वामी नाम ही उस परम सत्ता का असली नाम है। 5. ग्रंथ और रचनाएं। स्वामी जी महाराज ने अपनी शिक्षाओं को सार वचन, छंद और गद्य नामक पुस्तक में संकलित किया। इसमें उन्होंने रूहानियत के कठिन रहस्यों को बहुत ही सरल भाषा हिंदी और पंजाबी में समझाया है। 6. उत्तराधिकारी और विरासत। 15 जून 1878 को स्वामी जी महाराज अपनी देह त्याग कर निजधाम सिधार गए। उनके बाद इस मत को उनके मुख्य शिष्यों जैसे हुजूर महाराज ने आगे बढ़ाया, जिससे आज ये मत दुनिया भर में अलग अलग शाखाओं जैसे आगरा और ब्यास के माध्यम से फैला हुआ है। नोट: राधा स्वामी परंपरा में राधा स्वामी मत के द्वितीय गुरु हुजूर महाराज। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम राय सालीग्राम बहादुर था, जिन्हें बाद में हुजूर महाराज के नाम से जाना गया। इनका जन्म 14 मार्च 1829 को आगरा के पिपल मंडी में हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पोस्टमास्टर जनरल के उच्च पद तक पहुंचे। 2. स्वामी जी महाराज से मिलन। हुजूर महाराज सत्य की खोज में थे। उनकी भेंट स्वामी जी महाराज प्रथम गुरु से 1858 में हुई। स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंचकर उन्हें आत्मिक शांति मिली और उन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वे स्वामी जी महाराज के सबसे अनन्य और समर्पित शिष्य माने जाते हैं। 3. राधा स्वामी नाम का प्रकट होना। कहा जाता है कि हुजूर महाराज की गहरी भक्ति और प्रेम को देखकर ही स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी शब्द का उच्चारण किया और इस मत को यह नाम मिला। हुजूर महाराज ने ही स्वामी जी महाराज को सार्वजनिक सत्संग शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। 4. गुरु गद्दी और कार्यकाल। 1878-1898 1878 में स्वामी जी महाराज के निजधाम सिधारने के बाद हुजूर महाराज ने राधा स्वामी मत की बागडोर संभाली। उन्होंने सत्संग का दायरा बढ़ाया और आम जनता के लिए इसे सुलभ बनाया। आध्यात्मिक सिद्धांतों को तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समझाया ताकि पढ़े लिखे लोग भी इसे समझ सकें। 5. मुख्य शिक्षाएं और साहित्य। हुजूर महाराज एक महान लेखक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं प्रेम बानी। इसमें विरह और प्रेम के पदों का सुंदर संकलन है। प्रेम पत्र। इसमें रूहानियत के गूढ़ रहस्यों को पत्र शैली में समझाया गया है। राधा स्वामी मत प्रकाश, जो अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। 6. व्यक्तित्व और देह त्याग। उनका व्यक्तित्व प्रेम और दया से भरा हुआ था। वे उच्च सरकारी पद पर होने के बावजूद अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने 6 दिसंबर 1898 को अपनी देह त्यागी। आगरा के पिपल मंडी में उनका समाधि स्थल स्थित है, जहां आज भी हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मत के तृतीय गुरु महाराज साहब। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम पंडित ब्रह्मशंकर मिश्रा था, जिन्हें सत्संग जगत में महाराज साहब के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 28 मार्च 1861 को वाराणसी, बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वे बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। 2. गुरु शिष्य संबंध। महाराज साहब द्वितीय गुरु हुजूर महाराज के अनन्य शिष्य थे। वे बरेली में सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनका मन हमेशा अध्यात्म में रहता था। उन्होंने हुजूर महाराज की इतनी निष्काम सेवा की कि उन्हें मत का अगला उत्तराधिकारी चुना गया। 3. गुरु गद्दी। 1898-1907 1898 में हुजूर महाराज के निजधाम सिधारने के बाद महाराज साहब ने राधा स्वामी मत की जिम्मेदारी संभाली। उनके समय में सत्संग का बहुत विस्तार हुआ और शिक्षित समाज के लोग भी इस मार्ग की ओर तेजी से आकर्षित हुए। 4. विशेष योगदान। राधा स्वामी ट्रस्ट की स्थापना। महाराज साहब का सबसे बड़ा संगठनात्मक योगदान 1902 में राधा स्वामी ट्रस्ट की स्थापना करना था। उन्होंने मत की संपत्तियों और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया ताकि भविष्य में सत्संग का कार्य सुचारू रूप से चल सके।
5. दार्शनिक लेखन महाराज साहब ने रूहानियत को दार्शनिक और वैज्ञानिक नज़रिए से समझाने के लिए डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ नामक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने सृष्टि की रचना और आत्मा की यात्रा को बहुत ही तार्किक तरीके से समझाया है। 6. व्यक्तित्व और सादगी। वे अत्यंत गंभीर, विद्वान और शांत स्वभाव के महापुरुष थे। उनके वचनों में गहरा तर्क और प्रेम होता था। उन्होंने बनारस को अपना मुख्य केंद्र बनाया और वहीं से सत्संग की धारा प्रवाहित की। 7. देह त्याग, निरंतर कार्य और कठिन आध्यात्मिक अभ्यास के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 12 अक्टूबर 1907 को महाराज साहब अपनी देह त्याग कर निजधाम से धार गए। महत्व। महाराज साहब ने राधा स्वामी मत को एक संस्थागत रूप दिया और इसे बौद्धिक स्तर पर पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा। उनके बाद मत की अलग अलग शाखाओं ने अपने अपने तरीके से गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया। राधा स्वामी मत के चतुर्थ गुरु सरकार साहब। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम राय बहादुर कामता प्रसाद सिंह था, जिन्हें सत्संग में सरकार साहब के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1871 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मुरारपुर गांव में हुआ था। वे पेशे से एक उच्च अधिकारी थे। 2. आध्यात्मिक जुड़ाव। सरकार साहब तीसरे गुरु महाराज साहब के शिष्य थे। उन्होंने बहुत ही कम आयु में रूहानी मार्ग को अपना लिया था। उनका महाराज साहब के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण ही था कि उन्हें इस मत की चौथी कड़ी के रूप में चुना गया। 3. गुरु गद्दी। 1907-1913 1907 में महाराज साहब के निजधाम से धारने के बाद उन्होंने सत्संग की कमान संभाली। उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने मुख्य रूप से गाजीपुर और बनारस को अपने सत्संग का केंद्र बनाया। 4. दयालबाग की नींव का आधार माना जाता है कि सरकार साहब ने ही उस भविष्य की कल्पना की थी जहां सत्संगी एक साथ रहकर सेवा और सुमिरन कर सकें। उन्होंने अपने मुख्य शिष्य साहब जी महाराज, जो बाद में 5वें गुरु बने, को इस दिशा में कार्य करने के लिए तैयार किया और उन्हें आगरा में दयालबाग जैसी आध्यात्मिक कॉलोनी बसाने का संकेत दिया। 5. मुख्य शिक्षाएं। अनुशासन। सरकार साहब जीवन में बहुत ही अनुशासित थे और सत्संगियों को भी वक्त का पाबंद रहने की शिक्षा देते थे। आंतरिक अभ्यास। उन्होंने सूरत शब्द योग के अभ्यास पर विशेष जोर दिया और बताया कि बिना गुरु की दया के आत्मा का उत्थान संभव नहीं है। 6. देह त्याग। सरकार साहब का स्वास्थ्य काफी समय तक खराब रहा। उन्होंने 7 दिसंबर 1913 को अपनी देह त्याग दी। उनके बाद गुरु परंपरा दयालबाग, आगरा और अन्य शाखाओं के माध्यम से आगे बढ़ी। विशेष बात, सरकार साहब को उनकी सादगी और ऊंचे रूहानी दर्जे के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस मत को एक ऐसी दिशा दी जहां रूहानियत के साथ साथ दुनियावी जिम्मेदारियों को भी सलीके से निभाने की सीख मिलती है। राधा स्वामी मत के पंचम गुरु साहब जी महाराज। 1. जन्म और परिचय। इनका शुभ नाम सर आनंद स्वरूप था, जिन्हें श्रद्धालु साहब जी महाराज के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 6 अगस्त 1881 को उत्तर प्रदेश के अंबाला, अब हरियाणा में हुआ था। वे बहुत ही प्रतिभाशाली और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। 2. गुरु शिष्य संबंध। साहब जी महाराज चौथे गुरु सरकार साहब के अनन्य और सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माना और उनके बताए मार्ग पर चलकर मत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 3. दयालबाग की स्थापना। 1915 साहब जी महाराज का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान आगरा में दयालबाग की स्थापना करना है। 20 जनवरी 1915 को उन्होंने एक शहतूत का पौधा लगाकर इस पवित्र स्थान की नींव रखी थी। उनका सपना एक ऐसी जगह बनाना था जहां लोग आध्यात्मिक अभ्यास के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी से अपनी आजीविका भी कमा सकें। 4. शिक्षा और उद्योग पर जोर। उन्होंने बेहतर इंसान बनाने के लिए शिक्षा और उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने दयालबाग में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान खोले। उन्होंने डेयरी फार्म, टेक्सटाइल और अन्य छोटे उद्योग शुरू किए ताकि सत्संगी आत्मनिर्भर बन सकें। उनका नारा था, काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। 5. गुरु गद्दी। 1913-1937 1913 में सरकार साहब के बाद उन्होंने बागडोर संभाली। उनके समय में राधा स्वामी मत केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ। उनके कुशल प्रशासन और रूहानी शक्ति के कारण दयालबाग एक आदर्श समाज के रूप में उभरा। 6. मुख्य शिक्षाएं। आत्मनिर्भरता। हाथ से काम करने में कभी शर्म महसूस न करें। सहकारिता। मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना। आधुनिकता और आध्यात्म। उन्होंने सिखाया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। 7. देह त्याग। निरंतर कठिन परिश्रम और समाज सेवा के बाद 24 जून 1937 को साहब जी महाराज अपनी देह त्याग कर निजधाम से धार गए। निष्कर्ष, साहब जी महाराज ने रूहानियत को केवल गुफाओं या कमरों तक सीमित नहीं रखा,
बल्कि उसे खेतों, कारखानों और स्कूलों तक ले आए। आज का आधुनिक और सुंदर दयाल बाग उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਅਜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਚੁਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਪੀਸਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਮੱਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 1 ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮੂਨ ਬੇਗ ਡਰਾਈ ਮੂਨ ਬੇਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਜੁਲਾਈ 1905 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। 2 ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 1937 ਤੋਂ 1975। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਜਧਾਮ ਸਿਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1937 ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਆਲ ਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 3 ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲ ਬਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। 4 ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ। 5 ਦੇਹ ਤਿਆਗ। ਮਹਿਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 14 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਜਧਾਮ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ MB ਲਾਲ ਜੀ ਡਰਾਈਵ MB ਲਾਲ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1 ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੇਵਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2 ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਣਕ ਚੁਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ,
ਪਰ ਮੁਖ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 3 ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 4 ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ